So in our previous lecture we have gone through R triggering and RC triggering. We have observed that R triggering is the simplest to implement. It does not require any kind of a complicated hardware. It does not even require of any sophisticated kind of design as well. It don't employ any much bigger formulas, only a potential divider formula, and you will be able to implement that. Okay, but after R triggering, what we have seen that the R triggering disadvantage is that we have to limit ourselves up to 90 degree triggering angle, firing angle, triggering angle. Some people call it as a triggering angle, some people call it as a firing angle. That firing angle is limited to 90 degree. We can't beyond go that. So to go beyond that, what we thought that we should implement a capacitor instead of a resistor. So we will be using, instead of two resistors, we will be using resistor and a capacitor. We will be using resistor and a capacitor. The thing is that in case of your RC triggering, we were using this kind of point. Okay, so if our gate voltage is, suppose this is a gate voltage which is required to trigger the SCR. Now to be specific, we call it as गेट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड. ये सीन एग्जांपल, हम वो चीज इस्तेमाल नहीं करते करके वहां पिछले लेक्चर में क्या गलती हुई थी आपने देखा theoretically, है ना. तो what we do, we will say gate to cathode voltage is VG. This much is a required voltage to turn it on. So what we thought that we could change the angle of triggering, firing angle we can change it by changing the ramp of this. Now we can change this ramp by varying resistor or by varying capacitor. Variable capacitors are difficult, variable resistor is cheaper and implementable, easy available. So we can have a variable resistor. That variable resistor is used to vary this ramp, and in that subsequently we will be able to change the firing angle. We will be able to have a variation in firing angle. We will be able to have variation in firing angle. So the limitation which was there earlier of 90 degree maximum firing angle is eliminated with the help of a RC triggering circuit. The very first point when we discussed about triggering circuit, that time we have seen that the RC triggering circuit can be implemented by using either a AC triggering or a DC triggering, and in that DC triggering we have seen that continuous DC or a pulsating DC, and we have seen that, we have discussed that pulsating DC is a better option. Pulsating DC is a better option. Why pulsating DC is a better option? Because it can save power, because SCR requires the triggering only for a period, we call it as on time. SCR's on time. So SCR's on time is in microsecond, in milliseconds. If SCR requires triggering for a millisecond or a microsecond, why to give it for so much long time? So if you want to save the power, then somehow you devise a method which will say that I will give triggering only for discharge wala time, not for charge wala time. यहां पे क्या है, चार्ज वाला टाइम तक यू आर गिविंग ट्रिगरिंग. सो इंस्टेड ऑफ दैट, व्हाई शुडंट वी हैव अ सर्किट व्हिच कैन हेल्प अस टू गिव ट्रिगरिंग फॉर दिस मच टाइम ओनली. तो ये तो छोटा रहेगा, इतने इससे भी छोटा रहेगा. तो जहां पे भी देना है आपको वहां दे दो, जहां पे भी देना है वहां दे दो, wherever you want वहां पे दे दो. तो हाउ टू इंप्लीमेंट दैट? सो व्हिच काइंड ऑफ सर्किट वी यूज फॉर दैट? Okay, so for that purpose we have to go with the oscillator. We have to go with the oscillator, and the oscillator what I am talking about is a oscillator which can give us a more relaxation time. More relaxation time means SCR, my oscillator will not oscillate on this side, but it will oscillate only for this kind of thing. So I will be calling this oscillator as a relaxation oscillator. I will not be calling it as a pure oscillator, but I will be calling it as a relaxation oscillator. I have to have a device which is a circuit which we call it as a relaxation oscillator, which will give me this kind of thing. So मेरा जब भी ये आएगा वो वाला मेरा फायरिंग एंगल रहेगा, जब भी वो आएगा. तो एक साइकिल में ये, दूसरी साइकिल के टाइम ये, तीसरी साइकिल के टाइम ये, चौथी साइकिल के टाइम ये. तुमको पता है साइकिल ऐसी है.
या ऐसे भी हो सकती है। ओके, साइकिल ये है, गॉट इट। वो डीसी के लिए थी, ये एसी के लिए थी। तो वी हैव टू हैव अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। तो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बनाने के लिए, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कोई भी ऑसिलेटर बनाने के लिए यू हैव टू इंप्लीमेंट सम काइंड ऑफ प्रिंसिपल, तो सम काइंड ऑफ थ्योरी। और वो था, हमने देखा कि ऑसिलेटर बनाने के लिए आपको या तो बार्गहाउसेन क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। ओके, बार्गहाउसेन क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। बार्गहाउसेन क्राइटेरिया यानी क्या कि यू हैव टू हैव अ प्रोडक्ट फीडबैक एंड फॉरवर्ड गेन, प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन द फीडबैक वोल्टेज शुड बी इन फेज विद द इनपुट। बराबर है, दोज आर द थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। लेकिन अब यहां पर जब हम दूसरी एक मेथड है, उसको बोला जाता है निगेटिव रेजिस्टेंस वाला। You have to use a device which has a negative resistance property. Negative resistance का मतलब क्या होता है? Negative resistance का मतलब normally resistance में क्या होता है? If you increase voltage, current will increase. तो if you increase voltage, current will increase. और negative resistance में क्या होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होना चाहिए। बराबर है? So this is a negative resistance property. They will not be having a positive slope. There is a negative kind of slope. तो ऐसा कौन सा सर्किट है जो तुमने बनाया है और जो ये काम करता है? तो अब यहां पर we have implemented two kind of devices for that. You call them as either a UJT or a PUT. We call them as UJT or a PUT. हम क्या बोलते हैं उसको? UJT या PUT बोलते हैं। Okay, you can have either a UJT or a PUT. UJT means what? Unijunction transistor. And PUT means what? Programmable unijunction transistor. Both are actually unijunction transistor. So what is common in that? The common in both these devices is that they are not unijunction. I am not asking in name, I am asking in property, and that property is both must be able to exhibit negative resistance property for certain kind of a time. For certain kind of a time, both of them should be able to give us a negative. ओके, अब यानी ये कैसा देता है, वो देखो कैसा देता है नेगेटिव रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी। इफ यू रिमेंबर द ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक है यूजेटी का। बराबर है, वी कॉल दिस वोल्टेज एज, ये वोल्टेज को क्या बोलते हैं? पीक वोल्टेज। एंड दिस वोल्टेज वी कॉल इट एज वैली वोल्टेज। वी कॉल दिस वोल्टेज एज पीक वोल्टेज, अनदर वोल्टेज एज वैली वोल्टेज। पीक है करके पीक जैसा है ना, करके पीक वोल्टेज, और वैली जैसा है करके वैली वोल्टेज। वी कॉल पीक वोल्टेज एंड वैली वोल्टेज। अब ये दोनों के बीच में वो देखो, तो यहां पे आप देखो तो जैसे जैसे मेरा दिस इज करंट एंड दिस इज वोल्टेज। इज इट राइट? इज इट राइट? नहीं, राइट नहीं है ना, क्योंकि मैं इसको वीपी बोल रहा हूं, यानी ये पॉइंट को मैंने वीपी बोला, ये पॉइंट को मैंने वीवी बोला। तो यानी ये एक्सिस पे वोल्टेज है और ये एक्सिस पे करंट है। यही चीज है जब हम यूजेटी का कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं, तो जनरली क्या होता है, जब अभी हम कैरेक्टरिस्टिक कोई भी प्लॉट करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी टेक एक्स एक्सिस पे वोल्टेज। व्हाई वी टेक एक्स एक्सिस पे वोल्टेज? तो एक्स एक्सिस पे नोन चीज डालना हमारी आदत है, एक्स एक्सिस पे नोन चीज डालना। और हम वोल्टेज सोर्स है हमारे पास में, जो वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है वो यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर लगा करके किसी भी वोल्टेज सोर्स को हम वेरिएबल वोल्टेज सोर्स बनाते हैं, वो यूज करते करके हम जनरली क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज डालते हैं, करंट हम वाई एक्सिस पे डालते हैं। लेकिन यहां पर कैसा है, ये वाला एक्सिस करंट का है, वो वाला एक्सिस वोल्टेज का है। तो ये पर्टिकुलर टाइम पे आप देखो, तो यहां पे आप देखोगे तो वोल्टेज भी इंक्रीज होता है, करंट भी इंक्रीज होता है। देखो वोल्टेज भी बढ़ा, करंट भी बढ़ा। ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कंपेयर करो, तो यहाँ पे वोल्टेज इतना था, यहाँ पे करंट इतना था। आप यहाँ पे देखो तो वोल्टेज भी बढ़ गया और करंट भी बढ़ गया। आप इधर देखोगे तो इधर भी वैसी ही चीज है। लेकिन आप ये पर्टिकुलर जो डॉटेड लाइन है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो ये ऑब्जर्व में क्या आ रहा है कि करंट तो बढ़ रहा है लेकिन वोल्टेज डिक्रीज हो गया। करंट तो बढ़ा, देखो करंट यहां से लेकर के यहां तक पहुंच गया, लेकिन वोल्टेज यहां से लेकर के यहां तक आ गया। यानी IV इज मोर देन IP।
लेकिन वही सूरत पे क्या हुआ, VV इज लेस देन VP। तो हमारे को क्या ये चाहिए था, वोल्टेज गिर गया और करंट बढ़ गया। यानी ये जो प्रॉपर्टी थी, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी थी जो हमें इंप्लीमेंट करने में मदद कर रही है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ओके, हमारे को ऑसिलेटर बनाना था, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बनाना था, ये पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी उसकी हमारे काम आ रही है। Got it? Understood this? Basically ये यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर बनाते कैसे, वो थोड़ा सा अपन रिवाइज करते हैं। You must have seen that in your previous lecture कि यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर बनाते कैसे, क्योंकि वो समझना हमारे लिए जरूरी है। तो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है, एक एन टाइप का या पी टाइप का मटेरियल होता है। तो अगर पूरा एन टाइप का मटेरियल है, पूरा एन टाइप का मटेरियल है वो, तो कोई भी एन टाइप या पी टाइप का मटेरियल एक्चुअली रजिस्टर होता है। Actually, it is a semiconductor resistor. If you have to make a semiconductor resistor, you will do N doping or P doping, you will get a semiconductor resistor. तो हमारे पास में हम क्या बोलते हैं, we will have a kind of a resistor actually speaking. अब ये रजिस्टर में क्या करते हैं, वो एक जगह पे थोड़ी सी डोपिंग करवा देते हैं P टाइप की, तो इट फॉर्म्स अ P N डायोड। ओके, गॉट इट? तो ये यूजीटी का एक्चुअली स्ट्रक्चर है। एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा है, एक पॉइंट होता है इधर, दूसरा पॉइंट होता है इधर, और तीसरा पॉइंट होता है एमिटर। तो अंदर से ये इंटरनल सर्किट है यूजीटी का, ये इंटरनल सर्किट है यूजीटी का। यूजीटी का सिंबल तो आप सबको याद है, कैसा है, जैसे जैसे हमारा ऐसा आता है, ऐसा आता है, विल हैव लाइक दिस, विल हैव लाइक दिस, और यहां से आकर के थोड़ा सा टेढ़ा होता है ना, ये यूजीटी का सिंबल है। ओके, एन चैनल यूजीटी का सिंबल है, पी चैनल यूजीटी के सिंबल में आरओ चेंज हो जाता है, एन चैनल यूजीटी का सिंबल है। तो हमारे पास में पी है, एन है, ये ऐसा है। मैंने क्या बोला, ये पूरा का पूरा बना हुआ कैसे होता है, अगर आप देखोगे तो ये पूरा एन टाइप का होता है और यहाँ पे छोटी सी पी टाइप की डोपिंग हो जाती है। तो यहाँ से एमीटर निकाल दिया जाता है, और ये एक बेस है और ये दूसरा बेस है। वी हैव टू टर्मिनल्स एंड एमीटर इन बिटवीन दैट। तो असल में देखोगे तो ये एक वोल्टेज डिवाइडर है। तो वोल्टेज अगर डिवाइडर है, ये मैं रब करता हूं, ये तो तुमको पता है, तुम्हें रब कर देता हूं। अगर यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर है, तो वोल्टेज डिवाइडर का मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस होगा इंटरनल, ये रेजिस्टेंस हो गया इंटरनल। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर यानी यू विल बी गेटिंग अ काइंड ऑफ R1 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, और यहाँ पे जो भी अप्लाई करोगे वोल्टेज, दैट वोल्टेज इज गेटिंग डिवाइडेड बिटवीन बेस वोल्टेज जो भी तुम अप्लाई किया। इस क्वांटिटी को आई कॉल इट एज ईटा। ओके, ये क्वांटिटी जो रेशियो है, दैट रेशियो ऑफ अ रेजिस्टेंस आई कॉल इट एज ईटा। अगर ये ईटा यहां पर फिक्स है, यूजीटी के अंदर फिक्स है, क्योंकि R1 R2 क्या है, इंटरनल है। लेकिन जब हम पीयूटी की बात करते हैं ना, तो R1 R2 वहां पे इंटरनल नहीं रहते, वो एक्सटर्नल रहते हैं। और वो हम डिजाइन करते हैं, हम वेरी कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। व्हाट माय पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन देम? सो दैट इज अ डिफरेंस कि दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्रामेबल यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर बिकॉज दिस कोफिशिएंट ऑफ resistivity coefficient can be varied there. ओके, वेरीड ओवर देयर, दैट कैन बी प्रोग्रामेबल, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज प्रोग्रामेबल, क्योंकि हम वेरी कर सकते हैं, यहां पे नहीं कर सकते क्योंकि ये अंदर है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। यानी व्हाट आई एम गेटिंग इज, आई एम गेटिंग अ काइंड ऑफ अ वोल्टेज डिवाइड होकर के यहां पे आया हुआ ईटा वीबी। अब मेरे को बताओ, ये डायोड को मेरे को ऑन करना है, तो व्हाट शुड आई डू? जनरली डायोड कब ऑन होता है, जब ये वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज और इससे ज्यादा होता है। तो यहां पे वोल्टेज कितना है, ईटा वीबीबी। यानी ईटा वीबीबी, अगर मैं इसका इमेजिन करता हूं कि यहां पे 0.7 डायोड को वोल्टेज लगता है टर्न ऑन करने के लिए, सो माय दिस वोल्टेज शुड बी इक्वल टू ईटा वीबीबी प्लस 0.7। बराबर है, ईटा वीबीबी प्लस 0.7, तभी वो ऑन होगा, नहीं तो ऑन होने वाला नहीं है। बराबर है ना? और जब ये ऑन हो गया तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट, so emitter current will start flowing through it. Understood the operation? Understood? Now got it? This is revision, whatever you will learn in UGT, that is a revision. अब हम जब इसको implement करेंगे तो how will you implement that circuit here, UGT relaxation oscillator as a triggering circuit for a
SCR. Okay, our heading is UJT relaxation oscillator. UJT relaxation oscillator for triggering of SCR. It can be used for triggering of any other thyristor, not necessarily only SCR. We can use it for track as well. अदर जो भी फैमिली में थायरिस्टर फैमिली में उसमें हम यूज कर सकते हैं. दिस इज अवर हेडिंग. तो हमने इसके लिए क्या यूज करना था? हमने देखा कि कहीं ना कहीं हमने बात की थी आरसी सर्किट की. तो वो आरसी सर्किट जहां पे हमें रैंप वाला पोर्शन नहीं देना था, हमने जब क्या बारी रैंप वाला पोर्शन नहीं देना, हमें सिर्फ डिस्चार्ज वाला पोर्शन देना था. तो हमने कहीं ना कहीं बात क्या की थी? हमारे ऑलरेडी पहचान वाले आरसी सर्किट की बात की थी. ओके, आरसी सर्किट की बात की थी. फिर हमने क्या बोला कि हम एक यूजीटी यूज करते हैं. ओके, अब इस यूजीटी को हमने क्या करना है? यहां से इस तरीके से एमीटर से कनेक्शन कर देना है. अब कैसा है ना, यूजीटी अगर काम करेगा ना तो यहां पे यू हैव टू हैव एक्सटर्नल रजिस्टर. ये एक्सटर्नल रजिस्टर है. मैंने जो इसके पहले डायग्राम में बनाया था वो इंटरनल कॉम्बिनेशन था. इसके अंदर का भाग था मैंने जो बना के बताया था, ईटा वीबीबी प्लस 0.7 वाला बात. ओके, ऐसे. अब ये सर्किट जो हो गया, दिस इज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर. दिस वी कॉल इट एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर. वी कॉल दिस एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर. गॉट इट. अब क्या होगा इसके अंदर? नॉर्मली व्हेनेवर यू अप्लाई अ सप्लाई टू दिस, अब नाउ आई एम टेकिंग अ डीसी सप्लाई. अभी तक मैंने एसी सप्लाई लिया था, अभी मैं डीसी सप्लाई ले रहा हूं. अभी तक मैंने जगह पे देखो, आर टिगरिंग में मैंने क्या किया? एसी सप्लाई लिया. आरसी टिगरिंग में मैंने डीसी सप्लाई लिया, नहीं एसी सप्लाई लिया था. उसमें एक प्रॉब्लम आता है, एक डिफिकल्टी आती है. वो कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो आगे जब हम पावर कंट्रोल सर्किट इंप्लीमेंट करेंगे तब डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे सॉल्व किया जाता है उसको. यहां पे भी मैंने अभी डीसी लिया, अगर मैं यहां पर एसी लेता तो जो प्रॉब्लम वहां पे आने वाली थी आरसी सर्किट में, वही प्रॉब्लम मुझे यहां पर भी आने वाली है. क्योंकि रजिस्टर रहता है तो रजिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता वो एसी है या डीसी है. लेकिन कैपेसिटर को फर्क पड़ता है क्योंकि वो डिले देता है. और यहां पे फिर हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं क्योंकि वो डिले देता है. तो तुम इनपुट में कब वेरिएशन कर रहे हैं वो हिसाब से कैपेसिटर डिले होकर वेरिएशन दे रहा है, तो हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ा सकता है. और कैलकुलेशन विल गेट डिस्टर्ब. हम ऐसा नहीं चाहते ना, हम चाहते हैं कि हम पावर को हमारे हिसाब से कंट्रोल कर सके. इसके लिए फायरिंग एंगल को हमारे हिसाब से कंट्रोल करके, अगर वो सर्किट वो डिले सर्किट के कारण कुछ और होने के कारण वो अगर उसको खराब कर दे रहा है तो दैट इज नॉट एम है ना, दैट इज अ न्यूसेंस टू अस. वो नहीं आना चाहिए. उसको कैसे सॉल्व करें तब हम देखेंगे जब हम वो सर्किट इंप्लीमेंट करेंगे, आरसी ट्रिगरिंग इंप्लीमेंट करेंगे एक्चुअल पावर कंट्रोल करने के लिए, या यूजीटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर यूज करेंगे ट्रिगरिंग बोल करके एक्चुअल पावर कंट्रोल के लिए. तो यहाँ पे हमने इस तरीके का इंप्लीमेंट किया, इस तरीके का सर्किट बनाया. अब क्या होगा? नॉर्मल केस है, दिस कैपेसिटर विल चार्ज. Nobody will stop the capacitor to charge. बराबर ना? There is a supply. So capacitor wanted to go to that supply. जो भी VCC तुमने जब कनेक्ट किया है, it wanted to go to VCC. It wanted to go to VCC. But will it be successful in going to VCC? Will it be successful to go to VCC? जा सकता है क्या? नहीं जा सकता. तो क्यों नहीं जा सकता? भी देखो, वो तो चार्ज करना चालू किया. ये सर्किट में अगर नॉर्मली ये वाला पार्ट नहीं रहता कनेक्टेड, यूजीटी वाला पार्ट नहीं रहता कनेक्टेड, तो क्या होता? कैपेसिटर को कोई भी वीसीसी में चार्ज होने तक नहीं रोक सकता था. 5 टाइम कांस्टेंट पे वो वीसीसी के पास खड़ा रहता. 5 टाइम कांस्टेंट पे वीसीसी के पास खड़ा रहता. अगर किसी लड़की को चाहिए ये वेरिएशन करे, इसका रैंप बढ़ाए, रैंप कम करे, तो वो रजिस्टर का वैल्यू करके कर सकती है, चेंज करके कर सकती है. बराबर है ना, वो कर सकती है. लेकिन हम वो बात कर रहे हैं कि क्या ये वीसीसी तक चार्ज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि वो अकेला थोड़ी है, कोई और खड़ा है वहां पे. और वो भी खड़ा किसे है कि वो बोलता है कि ये अगर वोल्टेज मेरा ईटा वीबीबी प्लस 0.7 अगर हो जाएगा तो मैं चालू हो जाऊंगा. आई विल टर्न ऑन. हाँ, तो I will turn on. What it says? I will turn on. That is what we saying. This device says that. This device says that. Got it? तो ये डिवाइस क्या बोलता है कि मैं टर्न ऑन हो जाऊंगा. कब टर्न ऑन हो जाऊंगा? जब भी मेरा वोल्टेज
ईटा वीबीबी प्लस 0.7 हो गया, तो अगर वो हो गया ईटा वीबीबी प्लस 0.7 तो क्या होगा? अरे वो अगर टर्न ऑन हो गया तो कैपेसिटर इधर से चार्ज हो रहा था अभी तक, ये ना ये सर्किट में ऐसा करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन वो टर्न ऑन हो जाने के कारण क्या होगा? कैपेसिटर इधर डिस्चार्ज होने लगेगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है ना, ये कम रेजिस्टेंस वाला पाथ है, तो कैपेसिटर पहले बोलेगा मैं डिस्चार्ज हो जाता भाई, है ना? तो कैपेसिटर क्या करेगा? डिस्चार्ज होने चले जाएगा। कब तक डिस्चार्ज हो गएगा कैपेसिटर? जब तक ये रास्ता मिलेगा, ये रास्ता जब तक मिलेगा, और जैसे ये रास्ता मिलना बंद हो गया फिर से वो क्या करेगा? चार्ज होने लगेगा। ओके, तो यानी अगर आप ये कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज बना रहे हो तो आपको वोल्टेज कैसे मिलेगा? कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन अगर आप ये रजिस्टर के अक्रॉस का बात करोगे तो रजिस्टर के पास का वोल्टेज जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है इसके पास कुछ नहीं मिल रहा है। दिस इज आइडल, दिस इज रिलैक्सिंग। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होने आया इसके ऊपर पीक आ गया और ये डिस्चार्ज का मिला। यानी इफ यू प्लॉट अ वेवफॉर्म एट दिस रजिस्टर यू विल गेट ओनली दिस वेवफॉर्म, बराबर है? देन वो नेक्स्ट टाइम पे वापस से वो वेवफॉर्म। दिस इज व्हाट वी एम्ड, दिस इज व्हाट वी एम्ड, है ना? रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में यही अपने को तो चाहिए था जो ट्रिगरिंग बोल के इस्तेमाल कर सके। तो यानी हमने क्या किया, ये जो सर्किट है, ये जो वेरिएशन हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या बोला था कि यूजेटी जहां ऑन होता है वो वोल्टेज कौन सा था? पीक वोल्टेज, हाँ? और यूजेटी जिसके नीचे ऑफ हो जाता है वो वोल्टेज कौन सा है? वैली वोल्टेज। यानी यहां पे क्या हो रहा है? बिटवीन पीक वोल्टेज टू वैली वोल्टेज वो वेरिएशंस मिल रहा है। और आपको एक केयर लेना है यहां पे, आपको ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, क्योंकि ये जो स्लोप है ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड है, ये जो स्लोप मिल रहा है ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड है। आपको ये ध्यान देना है कि ये रेजिस्टेंस इतना ले कि वो एससीआर इंश्योर कर लो कि टर्न ऑन हो गया। You to choose the value of resistor in such a way that कि that resistor should be, the SCR should get turn on, उतना आपको केयर लेना है, बाकी हो गया। तो this can be used to implement it। अगर अब तुमने स्लोप बढ़ाया, कम किया, तो स्लोप अगर तुमने कम किया तो वो पल्स यहां मिलेगी, जो यहां मिली थी पल्स यहां मिलेगी। अगर तुमने बढ़ाया तो पल्स यहां मिलेगी। यानी अल्टीमेटली इफ यू आर यूजिंग दिस टू फायर द एससीआर, तो एससीआर यहां पे भी फायर किया जा सकता, यहां पे भी फायर किया जा सकता, यहां पे भी फायर किया जा सकता, डिपेंडिंग ऑन द स्लोप रैंप ऑफ अ कैपेसिटर चार्जिंग, एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस रजिस्टर, दैट इज कंट्रोल्ड बाय दैट रजिस्टर। गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड द वर्किंग? हाँ, अब इसकी वेवफॉर्म अगर तुमको समझाने को बोलूं मैं तो वेवफॉर्म समझा सकते हो। वेवफॉर्म में पूरी तो नहीं ड्रॉ कर सकता, यहाँ पे पूरी अगर वेवफॉर्म भी रहेगी तो तुम बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, समझा सकते हो। गॉट इट? अब इसी सर्किट को अगर मैं बोलूं कि मुझे ये सर्किट किसे देना है? एससीआर के, तो मैं क्या करूंगा? आई विल ड्रॉ एससीआर हियर, और ये मैं कनेक्ट कर दूंगा एससीआर के गेट से, ये कनेक्ट कर दूंगा मैं एससीआर के गेट से। अब ये एससीआर को जो भी सप्लाई, आप इसी सप्लाई पे काम करता है तो यही सप्लाई दीजिए, इसी सप्लाई पे काम करता है तो यही सप्लाई लोड से लगा करके आप दे दीजिए। ओके, गॉट दिस पॉइंट? अंडरस्टूड? इज देयर एनी डाउट अप टू नाउ? नो प्रॉब्लम? शुड वी गो अहेड? अब थोड़ा थोड़ा मैं इसमें बदलाव लाता हूं। अभी क्या हो गया, अब मैं तुम्हारे को दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी तक तो वो नहीं आए, अब आ रहे, इस सर्किट के बाद में आएंगे। एक कॉन्सेप्ट है उसमें सिंक्रोनाइजेशन का, एक कॉन्सेप्ट क्या है? सिंक्रोनाइजेशन का, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? तो आइसोलेशन का। दो कॉन्सेप्ट आएंगे अभी, एक है सिंक्रोनाइजेशन का, ओके, और दूसरा है आइसोलेशन का। तो पहले ना आइसोलेशन वाली बात ले लेते हैं। क्या होता है कि जब तुम एचसीआर यूज करते हो तो एचसीआर इज अ पावर डिवाइस, वो हेवी पावर पे काम करता है, ओके। और जब तुम ये ट्रिगरिंग वाला सर्किट की बात करते हो तो ट्रिगरिंग वाला सर्किट इज
लो पावर का सर्किट, यानी वो 30 वोल्ट बहुत ज्यादा हो गया, 5 वोल्ट पे भी काम कर लेता है, और एससीआर काम करता है केवीज में, किलो वोल्ट में, हाई पावर सेक्शन है। तो ये लो पावर सेक्शन और हाई पावर सेक्शन में इस तरीके का डायरेक्ट कनेक्शंस नॉट सजेस्टेड। तो जनरली व्हाट पीपल डू, दे कनेक्ट द ट्रांसफॉर्मर हियर। That transformer provide isolation। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर है जिसको हम बोलते हैं पल्स ट्रांसफॉर्मर। क्यों? क्योंकि पल्स के लिए यूज कर रहे हैं हम, तो इसकी डिजाइन भी उस तरीके से की जाती है। तो हमने पल्स ट्रांसफॉर्मर यूज किया, जिसमें हमने देखा कि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव रहना चाहिए। वी हैव यूज्ड पल्स ट्रांसफॉर्मर। इट कुड बी एनी आयरन कोर और इट कुड बी अ फेराइट कोर, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। द टर्न रेशियो वील कीप इट एज 1:1। The turn ratio we keep it as 1:1। और अगर तुम्हारा दूसरा SCR है उसको कनेक्ट करना चाहते हो तो you can use a pulse transformer which are 1 to 2 secondary, 1 primary 2 secondary वाला, 1:1:1 वाला। तो you can trigger 2 SCRs, multiple SCRs can be triggered। ये बात क्यों आती है मालूम है क्या? multiple SCRs can be triggered। मैंने जैसे बात बताया, एक SCR है तो तुमने किया 1:1 वाला, अगर 4 SCR रहते तो तुम 1:1:1:1:1 ऐसे 4 वाले, एक प्राइमरी और 4 सेकेंडरी। लेकिन ये क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है और SCR की कम रहती है। तो ऐसे सूरत में अगर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और हमारे पास कम वोल्टेज वाला SCR है तो वी कनेक्ट SCR इन सीरीज। कट कर दो। बीवी वापस कर रही है। तो गॉट माई पॉइंट? अंडरस्टूड दिस? तो आइसोलेशन का अब वो क्या रहता है ना, एक और चीज मैं तुम्हारे को छोड़ के जा रहा हूं। हाँ, मैंने पहली चीज क्या बोली कि मेरे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे जब मैं इंप्लीमेंट करूंगा हाई पावर कंट्रोल के अंदर, वो डिस्कस करना है अपने को। सी के कारण, सी आ गया ना, वो डिले करवा रहा है, डिले करवाने में वो अपने को एड्रेस करना पड़ेगा आगे चल के प्रॉब्लम। दूसरा और एक प्रॉब्लम जो मैं बता रहा कि मैं यूज करने वाला हूं मल्टीपल SCRs इन सीरीज सो दैट आई कैन शेयर वोल्टेज। ओके, मेरा वोल्टेज का कैपेसिटी 500 का है और मुझे 1000 के लिए इस्तेमाल करना है, तो आई कैन हैव 2 SCRs इन पैरेलल सीरीज। तो वोल्टेज के लिए सीरीज में, तो करंट के लिए पैरेलल में। करंट अगर शेयरिंग कैपेसिटी बढ़ाना है तो वी हैव टू यूज SCR इन पैरेलल। एट दैट टाइम वी हैव टू इंश्योर दैट ऑल द SCR शुड टर्न ऑन एट द सेम टाइम। तो उस वक्त ये पल्स ट्रांसफार्मर का इंप्लीमेंटेशन इज फार बेटर ऑप्शन, is a better option। Got my point? Understood this? तो आइसोलेशन क्यों, क्या कैसा समझ में आ गया? आइसोलेशन क्यों जरूरी था? हाई पावर डिवाइस को लो पावर डिवाइस से आइसोलेट कर दिया हमने, फिजिकल कनेक्शन नहीं है, इवन दो पावर इज गेटिंग ट्रांसफर्ड विदाउट एनी काइंड ऑफ फिजिकल कनेक्शन। दैट इज अ पर्पस ऑफ अ ट्रांसफार्मर एंड दैट आइसोलेशन पर्पस ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज इंप्लीमेंटेड हियर। Okay, then another advantage is we can have multiple secondary wala transformer so that the same pulse can be given to multiple SCRs in case if you are connecting them in series or parallel to enhance your power rating. This circuit is useful. Got it? Understood? Now we'll go to isolation वाला पर्पस से छूट के सिंक्रोनाइजेशन वाला पर्पस की तरफ। सिंक्रोनाइजेशन में क्या रहता है कि we have seen that it may be possible कि I am using it for a बड़ा वाला सर्किट, maybe AC, maybe DC, for a high power circuit। तो in that case अब क्या रहता है कि we wanted to ensure that कि मेरे पास में ये SCR है और इसका ये आउटपुट है ना? तो जो हमारा ट्रिगरिंग सर्किट रहेगा उसका भी इसी से मैच होना चाहिए, जहां पर भी ये चीजें मैच हो रही है वहीं से मैच होना चाहिए हमारे ट्रिगरिंग सर्किट का भी। दैट इज सिंक्रोनाइजेशन। वी वांटेड टू सिंक्रोनाइज आवर ट्रिगरिंग सर्किट इन अकॉर्डिंग टू द सोर्स, जो भी सोर्स है उसके साथ इनका सिंक्रोनाइजेशन हो। यानी इसका जब पॉजिटिव गोइंग 0 आ रहा है तो इसका भी पॉजिटिव गोइंग 0 है, इसका जब निगेटिव गोइंग 0 आ रहा है तो इसका भी जब निगेटिव गोइंग 0 है। सो क्या होता है कि ऐसे सूरत में टू हैव सिंक्रोनाइजेशन, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सेपरेट सप्लाई वी यूज सप्लाई फ्रॉम दिस साइड ओनली। अब ये तो हाई पावर है, हाई पावर होने के कारण हमने क्या किया, इसको हमने ट्रांसफार्मर से छोटा कर दिया।
स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज किया तो हाई पावर को छोटा पावर कर दिया, यू रिड्यूस। हाई पावर छोटा पावर नहीं जाता है, हाई पावर छोटा पावर, ट्रांसफॉर्मर तो पावर सेम रखता है ना। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है? पावर सेम रखना, हाई वोल्टेज को छोटा वोल्टेज किया। इट मींस इट हैज हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वी हैव यूज, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर व्हाटएवर इट इज, आई एम नॉट ड्राइंग। कोर उसका आयरन कोर होएगा, फेराइट कोर होएगा या एयर कोर होएगा, आई डोंट नो, व्हिचएवर ट्रांसफॉर्मर अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी विल यूज इट। ओके, अब नाउ हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर यूज किया जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया। अब ये जो मेरे पास चीज आई है, अब ये तो मेरा पूरा डीसी में काम कर सकता है ना, तो आई विल कन्वर्ट दिस इनटू डीसी। तो डीसी के लिए मैंने क्या किया, आई विल इंप्लीमेंट अ रेक्टिफायर हियर। रेक्टिफायर इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो वी आर यूज द रेक्टिफायर। आई एम नॉट ड्राइंग अ डायग्राम ऑफ अ रेक्टिफायर, I think that you should be able to draw it. रेक्टिफायर कैसा बनाना आता है, तुमको आता है। तो आई एम ड्राइंग ए ब्लॉक डायग्राम। सर्किट डायग्राम में ब्लॉक डायग्राम क्या कर रहा है, अच्छा नहीं दिखता है। विल ड्रॉ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कैसा बनाते हैं, 1 2 3 और 4 आ गए, ठीक है। अब ये इधर नहीं जाएगा, इट विल बी कनेक्टेड लाइक दिस, और दिस विल बी गोइंग टू here and this will be going here, ठीक है। और ये ऐसे कनेक्शन हो गया। हाँ, अभी भी और एक काम किया। अभी भी मैंने क्या किया कि मैं सोचता हूं कि फिर भी मैंने स्टेप डाउन किया, रेक्टिफाई किया, लेकिन ये सर्किट में मुझे तो चार्ज डिस्चार्ज ही करना है। तो हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली, जब ये सर्किट इंप्लीमेंट करते हैं तो और एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक रजिस्टर लगाते हैं और एक यहाँ पे जीनर डायोड लगाते हैं। क्या करते हैं, जीनर डायोड। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो देखते हैं। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गई, मेरा क्या हो गया, ये दोनों का डीसी अलग अलग हो गया। डीसी इसका 0 अलग हो गया, इसका 0 अलग हो गया। तो ये चीजों को कैसे सॉल्व करना है, ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखो कि ये मुझे यहाँ पे 0 अलग है, यहाँ पे 0 अलग है, एसी का 0 अलग है, डीसी का 0 अलग है, वो कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देखो। तो बेसिकली क्या हुआ, पहले ये सर्किट समझ लेते। हमने क्या किया कि हमारा जो था सिंक्रोनाइजेशन में, हमने उसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से स्टेप डाउन कर दिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे जीनर डायोड लगाया। तो जीनर डायोड क्या करता है आपको पता है, VZ पे उसको रोक देगा, बराबर ना। तुमने रेक्टिफाई ये किया, रेक्टिफाई किया, रेक्टिफाई करने के बाद में एसी का डीसी हो गया। डीसी हो जाने के बाद में अब तुमने जीनर वोल्टेज का जीनर लिमिट आ गई। जीनर लिमिट आने के कारण इस पर्टिकुलर सर्किट को जो वेवफॉर्म आएगी वो ये वाली नहीं रहेगी, बल्कि इट विल बी अ ट्रेपोजाइडल वेवफॉर्म। इट विल बी अ ट्रेपोजाइडल वेवफॉर्म लाइक दिस। ये सर्किट को ये मिलने वाली है, यानी तुम्हारा कैपेसिटर का चार्जिंग जो हो रहा है वो ऐसे होगा, यहां से यहां तक। जहां भी आपका गेट है, इसके अंदर गेट रहेगा, ये गेट वोल्टेज तक होगा। व्हाट माय पॉइंट। और उसके आगे मैंने तुम्हारे को बताया था जो रजिस्टर के अक्रॉस हमको ये मिलेगा। अंडरस्टूड दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। कहां से चालू किया हमने बात करें कि हम आरसी, हमने देखा कि आर और आरसी ट्रिगरिंग बनाने वाले थे। आर ट्रिगरिंग का डिसएडवांटेज था, तो हम आरसी ट्रिगरिंग की तरफ पिछले लेक्चर में गए थे। फिर हमने देखा कि अगर हमारे को पावर ही सेविंग करना है तो वाई टू इंप्लीमेंट a C capacitor, only RC triggering will implement a relaxation oscillator. तो relaxation oscillator में we can save more power. जब relaxation oscillator किस तरीके से काम करता है, UGT हमने implement करने की सोचा, UGT का जो negative resistance का characteristic था वो implement करने को सोचा। उसके बाद में जब हमने रजिस्टर वो यूज करने गए तो हमने देखा कि वहां पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी हमारे पास में। तो फिर हमने क्या किया, आइसोलेशन का पर्पज से वो आइसोलेशन वाला ट्रांसफार्मर यूज किया, उसके फायदे हो गए। सीरीज पैरेलल कनेक्शन में हमारे को वो चीज एडवांटेजेस हो गई। फिर हमने देखा कि हमारे को सिंक्रोनाइजेशन का काम बाकी था। सिंक्रोनाइजेशन के काम के कारण हमने क्या किया, उसी सप्लाई से हमारा ट्रिगरिंग सर्किट का चीज भी हमने डिराइव कर लिया, उसको भी डिराइव कर लिया। वहीं से हमने उसको स्टेप डाउन करके ट्रेपेजॉइडल वेवफॉर्म में कन्वर्ट करके इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये जीरो हमारा वो जीरो के साथ मैच करेगा, ये जीरो हमारा उस जीरो के साथ मैच करेगा। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड दिस? अब यहां पे बात कैसे होती है कि अब मैं ये जो सर्किट बनाया, आई कैन यूज दिस सर्किट फॉर ट्रिगरिंग ट्रायक।
आई नीड नॉट टू डू एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, क्योंकि ट्रायड को ट्रिगरिंग पॉजिटिव भी चलती है, नेगेटिव भी चलती है। तो मेरा जहां पे भी ट्रिगर होगा, यहां पे भी ट्रिगर होगा, यहां पे भी ट्रिगर होगा, अल्टीमेटली मेरा आउटपुट एसी आएगा, लेकिन मेरा ट्रिगरिंग सर्किट जो मैंने इंप्लीमेंट किया वो कौन सा है? डीसी वाला है, डीसी वाला है। अंडरस्टूड दिस? गॉट इट? और यहां पे क्या हो रहा है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरी सिर्फ एससीआर यूज कर रहा हूं, मैं ट्रायक नहीं यूज कर रहा हूं, मैं सिर्फ एससीआर यूज कर रहा हूं, ट्रायक नहीं यूज कर रहा हूं, तो मैं इतना बड़ा सर्किट इंप्लीमेंट करने की बजाय क्या करूंगा, यहां पे सिर्फ एक डायोड डाल दूंगा बस। ओके, तो मेरा ये सेक्शन आएगा ही नहीं, आई विल गेट ओनली हाफ साइकिल, इस टाइम पे ही आएगा। अंडरस्टूड दिस? तो एससीआर के ट्रिगरिंग में मुझे यहाँ पे ब्रिज लगाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले रजिस्टर, एक अकेला, जैसा ये भाई हाफ वेव कंट्रोल्ड है तो ये भी हाफ कंट्रोल्ड है, ये सिर्फ क्या है? हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, और ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। कंट्रोलिंग का काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये अपने आप टर्न ऑन हो जा रहे हैं, उसको टर्न ऑन करना पड़ रहा है। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? समझ में आ गया ना?